Welcome, dear student. Let's start the part 7 of this series. And in this chapter, we are going to discuss different travelers who visited India and what was the opinion of these travelers about India. So, first of all, uh, you will have to read about Al-Biruni. And Al-Biruni was the traveler who visited India. He wrote one book named as Kitab-ul-Hind, right? So, remember the name of the book. The question is explain the distinctive features of Al-Baruni's Kitab ul Hind. This question has been asked in 2023 for 3 marks. Now, this book is very large. Why? Because it contains approximately 80 chapters and it also includes various subjects like religion, philosophy, social customs, law and science. So there's there is many topics that is covered in this book. That's why this text is voluminous, right? So this is the first picture. And second one, when Al-Biruni wrote this book, he always started every topic, every chapter with some question, right? And then he answered the question with description, right? And lastly, he concluded with comparison with some other culture, right? So these are the features you need to remember, and these features can be written in different points. If this question is asked in 8 marks also, you can write by dividing the points into 8 part, right? For example, first point you can write Al-Biruni adopted a geometric structure. Second point you can write each chapter begins with a question, right? Then third point, Al-Biruni answered that question with conclusion. In the conclusion, he compared the culture of India with some other country, right? And then last one is this text is very simple, lucid, and critical style. What is the meaning of critical style? That he did not simply write about the culture of India or any topic related to India. He also critically analyzed that topic. I just told you in the previous point that he compared. So whenever we compare, we generally something we got critical knowledge about that culture, right? So his writing style was critical, right? If something he did not like about India, he openly write it in his book. Then his analytical approach was very much praised by many historians, right? So these are the point you will cover in this question. This is the very simple basic answer. You can use this answer also, but you may get less mark, but it is easy to remember, right? So prepare accordingly. This can be used for revision purpose. Now next question, examine the view of Chinese traveler on the people considered outside the Varna system in ancient India. So question is simply asking that those people who traveled from China to India, how they saw Indian untouchability practice, right? So there are two names that is very much famous Chinese traveler. One is Fai Yan, visited India in 5th century. Another one is Zhuangzang, visited India in 7th century, right? He described about the untouchability. Who? That is Fai Yan, right? He noted that those people who were Chandalas, who are Chandalas? Chandala are those people who are um, burying the dead people, right? Or those people who are um, involved in, uh, you can say, जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पर जो
लाशों को जलाते हैं, उन्हें हम चंडाला कहते हैं, राइट? एंड दीज पीपल वर कंसिडर्ड एट दैट टाइम वेरी मच अनटचेबल्स, एंड दे हैड टू लीव आउटसाइड द सिटी। तो उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था, ये शहर है, द पीपल वर लिविंग आउटसाइड द सिटी, एंड वेन एवर दे आर एंटरिंग टू द सिटी और द विलेज, उन्हें अपने हाथ में क्लैपर रखना होता था। क्लैपर क्या होता है? ये वुड का बना हुआ होता था, राइट? दो टुकड़े वुड के जिससे बजाया जाता था हाथ से। वाई? टू सीक द अटेंशन ऑफ द पीपल और टू वार्न द पीपल दैट someone who is untouchable is coming in the street, so people may give them, or you can say people may be alerted, right? So that they can avoid the touching of chandalas or any untouchables. ठीक है? एंड देन जुआनजेंग, अनदर ट्रैवलर, उसने भी ये नोटिस किया कि जो एग्जीक्यूशनर थे, है ना, जो दूसरों को फांसी देते हैं, जिसको जल्लाद कहते हैं हिंदी में, या जो स्कैवेंजर्स थे, जो टॉयलेट की सफाई करते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को रहने के लिए सेग्रीगेटेड ड्वेलिंग्स होते थे, मतलब शहर के बाहर उनका घर होता था। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, so you write this. Now come to the next one. This is the simple version. Travelers often compared what they saw in the subcontinent with practices with which they were familiar. Explain the observation of Alberoni in the context of the above statement. The question is very simple कि जो भी ट्रैवलर इंडिया आते थे वो हमेशा इंडियन कल्चर को अपने कल्चर से कंपेयर करते थे, या फिर ऐसे कल्चर के साथ कंपेयर करते थे जिसके साथ वो फैमिलियर होते थे। तो ये बात सही है अल्बरूनी के कॉन्टेक्स्ट में। अल्बरूनी जब इंडिया आए थे, ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड द सोशल हायरार्की इन इंडिया। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंडिया का सोशल हायरार्की है, जिसमें कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रियाज हैं, राइट, वैश्य हैं और शूद्र हैं, ये यूनिक नहीं है। देर आर मेनी कल्चर इन दी वर्ल्ड जहाँ पर कि इस तरह के डिविजन्स हैं, राइट? ठीक है। तो उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सिया का एग्जांपल दिया। पर्सिया में उन्होंने कहा कि जिस तरह इंडिया में ब्राह्मण होते हैं, पर्सिया में क्या होता है? प्रिस्ट होता है, राइट? जिस तरह इंडिया में क्षत्रिय होते हैं, उसी तरह पर्शिया में नाइट्स होते हैं। वैश्य की जगह पर वहाँ पर फिजिशियंस, जो डॉक्टर्स होते थे वो, राइट? और जो शूद्र हैं उनकी जगह पर आर्टिशियंस होते। तो ऐसा उन्होंने कंपेयर करके दिखाया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ट्रैवलर आते हैं वो कंपेयर करते थे, तो यहाँ पर इन्होंने अल्बरूनी ने कंपेयर किया है, राइट? इसके अलावा अल्बरूनी ने ये लिखा है कि जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, राइट, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में बर्थ के बेस पे हायरार्की है, जो कि इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में सभी लोग इक्वल होते हैं, उनके बीच डिफरेंस सिर्फ उनके कर्म के आधार पर होता है, राइट, कि वो कैसा कर्म करते हैं, ऑन देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिक, राइट? बट हियर इन इंडिया द पीपल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। He disapproved the pollution. He told that in India, this concept of caste, that is Varna system, is totally wrong. He argued that it is against the law of nature. Nature allow everything to become pure. जो भी चीज़ें नेचर में इम्प्योर होती है वो वापस से प्योर होती है। जैसे जो हवा है ना, हवा गंदी होती है फिर वो वापस शुद्ध हो जाती है, राइट? तो how can a person who is born in one family be polluted throughout the life, right? तो उनका मानना था कि लोगों का जो आप कह सकते हैं प्योरिटी है वो आनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज जो कर्म है उनके काम पर ये डिपेंड करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये 8 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Ibn Battuta found cities in subcontinent full of exciting opportunity for those who had necessary drive, resources and skill. Explain this statement. देखो, इब्न बतूता जब आए थे तो उन्होंने दिल्ली और दौलताबाद, इंडिया के 2 सिटीज़ थे जिनकी काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो सिटीज़ है वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ से भरी पड़ी है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास स्किल्स है, कुछ करने की इच्छा है और किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है, रिसोर्स है, तो उनके लिए इंडियन सिटी बहुत ही परफेक्ट है ब्लूम करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आंसर। आपको जस्ट जो आंसर है उसको सेटिस्फाई करना है। कैसे? बाय गिविंग एविडेंस। व्हेन ही केम टू इंडिया, उन्होंने इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सबसे पहला देखा कि इंडियन सिटी वाज वेरी मच प्रॉस्परस एंड पॉपुलेटेड सिटीज़। तो जैसे दिल्ली में देखो, दिल्ली में यहाँ पर जो घर है काफ़ी आसपास हैं, काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं यहाँ, राइट। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो सिटी दिल्ली है वो फोर्टिफाइड है, कई सारे मॉस्क हैं, बाज़ार है। ठीक है, और ये जो बाज़ार है ये सिर्फ किसी सामान को सेल करने के लिए या सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है, बट इट वाज ऑल्सो अ हब फॉर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी। यहाँ फोटोग्राफ में देखिए, यहाँ पर बाज़ार में लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, गाना वाना बजा रहे हैं, राइट। ठीक है, दूसरी तरफ सामान भी बिक रहा है, दुकानें भी हैं, राइट। तो मार्केट सिर्फ इकोनॉमिक हब नहीं होता था बल्कि सोशल लाइफ भी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी। देन ही टोल्ड अबाउट द एग्रीकल्चरल सरप्लस, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि फार्मर्स हर साल 2 क्रॉप से ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता है। और ये जो सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है, इससे सिटी को फूड ग्रेन मिलती है। साथ ही साथ इस फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड नेटवर्क। इंडिया की कई सारी ऐसे सामान हैं जो ग्लोबल पहचान रखती है। कई सारी कंट्री में ये सामान भेजा जाता है, जैसे कॉटन, मुस्लिन, सिल्क, ये सारे कपड़े, है ना, ये काफ़ी डिमांड में होते थे एट दैट टाइम। तो दिस इज हाउ द इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड द इंडियन सिटीज, राइट। तो ये 8 मार्क्स क्वेश्चन में। एक और उन्होंने कहा था, he also mentioned about the postal system of India, that is Uluk and Dawa. What was Uluk? Every 4 mile one station, one horse person was stationed, और इनका काम होता था जो भी मैसेज आया या जो भी सामान है उसको अगले पर्सन तक पहुंचाना, जो कितनी दूरी पर खड़ा है, 4th माइल पर, मतलब 4 मील की दूरी पर दूसरा घोड़े लेकर खड़ा है। अब ये अगर किसी मैसेज को लेके जा रहा है तो ये मैसेज इसको पास करेगा, देन अगेन द नेक्स्ट वन विल पास टू अनदर वन। और इसके थ्रू उन्होंने ये मेंशन किया था कि क्रेडिट भी बहुत आसानी से जाती थी, पैसे भी जाते थे, इंफॉर्मेशन जाती थी, इवन गुड्स भी भेजा जाता था विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं, लिखेंगे। नाउ दिस इज द फॉलो अप क्वेश्चन exactly related with the previous one. So this question is about how did Ibn Battuta explain the system of communication in India? अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसका लास्ट पॉइंट वही यहाँ पर 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो आपको सिंपली लिखना है कि इंडिया की जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी एट दैट टाइम, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, राइट। क्या क्या? पहला था हॉर्स पोस्ट, दैट इज called by the name Uluk, and another one was foot post, that was called as Dawa, right. Foot post was stationed at 1/3 mile,
That means in 1 mile, three persons were there. And in Uluk, every 4 miles have one horseman, right? So they were having the task to transfer the message, goods, or credit. And the speed of foot post was more comparison to the horse post. And this system is very efficient, right? One example should be given that फ्रॉम सिंध टू दिल्ली इट इज़ ओनली 5 days, 5 दिन में सामान पहुंच जाता था या मैसेज पहुंच जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था ड्यूरिंग दैट टाइम, ऐसा इब्न बतूता ने कहा है। ठीक है, सो दिस इज इट। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम पार्ट 8।